Good morning students, I hope you all are fine and healthy. In the last lecture we have learned exercise 4.2 up to question number 3. Now we will start the question number 4, solving the equation. Okay, so solving the equation, the first question A is 10p is equal to 100. So 10p is equal to 100. The solution is 10p is equal to 100. Now we want to allow a variable on the left hand side, so we can divide 10 on the both side according to the previous lecture. Last lecture में हमने पढ़ा था ना how to solve the equation, how to allow the any variable in the one side and we can get the any constant number on other side, so we can get the solution. So here the first one is the dividing both side by 10. Dividing both side by 10. So 10p upon 10 is equal to 100 upon 10. 10 cut. 0 cut, so we can get p is equal to 10 is our solution. The second one, 10p plus 10 is equal to 100. 10p plus 10 is equal to 100. The first step of the equation is, first we remove the plus 10, so we can subtracting both side by 10, subtracting both side by 10, so that 10p plus 10 minus 10 is equal to 100 minus 10, subtracting 10 on both side, so we can get 10p plus 10 minus 10 cancel and 100 minus 10 it become a 90. Now again, if we want to allow a variable, then we can dividing 10 on both side. We can also be write like a divide 10 on both side. We can also be write like that. So that 10p upon 10 is equal to 90 upon 10. So 10 cut, 0 cut. So we can write p is equal to 9 is our solution. The C is, solution is, first we write the p upon 4 is equal to 5. Now if we remove the denominator of the variable 4, then we can multiply 4 on both sides. So we can also be write like multiplying both sides by 4. Multiplying both sides by 4. So that p multiply with 4 upon 4 is equal to 5 multiply with 4. 4 cut, so p is equal to 5 4s are 20 is our solution. Question D is, now you can see here the variable p is with the negative sign, and whenever we solution of any given equation, we never be take a negative sign with the variable. हम माइनस वेरिएबल के साथ कभी लिख नहीं सकते. हाँ, कोई भी वेरिएबल का आंसर नेगेटिव हो सकता है, पर कोई भी वेरिएबल हम माइनस के साथ नहीं लिख सकते. इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई नाउ आई मल्टीप्लाई विथ 3, मल्टीप्लाई 3 on both sides, but with the negative sign, so we can cut this negative sign, so that
minus p by 3 multiply with minus 3 is equal to 5 multiply with minus 3. Then you can easily see that minus minus plus 3p upon 3 is equal to plus minus minus 5 3s are 15. 3 3 cut. Then answer p is equal to minus 50. The last variable is never with negative sign, so we can multiply with the negative sign, so we can get the positive sign with variable at the end. Okay, write down this 4 example in your fair book. The example number E is 3p upon 4 is equal to 6, and solution is, first we write the example 3p upon 4 is equal to 6. Now with the multiplication of variable p 3 and division of 4, यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों का रिलेशन है, तो कोई भी मैं पहले यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ. तो फर्स्ट वन इज डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3. मैं दोनों साइड 3 से डिवीज़न लूँगा, तो देन वी कैन गेट 3p अपॉन 4 मल्टीप्लाई विथ 3 इज इक्वल टू 3 बाय 6 बाय 3. 3 3 कट, 3 2 जा 6. सो p by 4 is equal to 2. p by 4 is equal to 2. Then second step of equation is multiply both side by 4, multiplying both side by 4. So p multiply with 4 upon 4 is equal to 2 multiply with 4. अब हमें 4 से मल्टीप्लिकेशन करना है. 4 4 कट, then p is equal to 4 2 जा 8 is our solution. 3s is equal to minus 9. 3s is equal to minus 9. Now in the given equation we have only one first step, the dividing both side by 3. Dividing both side by 3. So 3s upon 3 is equal to minus 9 upon 3. 3 3 cut, then s is equal to 3 3s are 9. But in the chapter number 2 fraction and decimals, if any one of the fraction number of numerator denominator will be minus, then answer will be also minus. है ना. फ्रैक्शन नंबर में हमने सीखा था कि कोई भी फ्रैक्शन नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी एक टर्म नेगेटिव हो तो आंसर हमारा नेगेटिव ही आएगा, प्लस माइनस माइनस के फॉर्मूला पे. सो यहाँ पे आंसर आएगा मेरा -3. क्या आएगा? -3. सॉल्यूशन 3s plus 12 is equal to 9. 3s plus 12 is equal to 9. Then first step of given equation is remove the plus 12. So subtracting both side by 12. Subtracting both side by 12. Then answer will be 3s plus 12 minus 12 is equal to 9 minus 12. Plus 12 minus 12 will be 0. Then 3s is equal to, see here in the right hand side, 9 is plus and 12 is minus. Whenever we see opposite side, we can get the subtraction. Bigger value minus smaller value, and sign will be consideration as the bigger value. So 12 minus 9, it become a 3. 12 minus 9 become a 3, but sign will be consideration as the bigger value, so sign will be negative. Here
3s is equal to 3. Now second step of equation is dividing both side by 3. So 3s upon 3 is equal to minus 3 upon 3. 3, 3, 3, 3 cut. Then s is equal to minus 1 is our answer. Okay. The last one is 3s is equal to 0. So 3s is equal to 0. Now we want to alone save s in the left hand side. So we can divide 3 on both sides. Divide 3 on both sides. So 3s upon 3 is equal to 0 upon 3. 3, 3 cut. So s is equal to 0 divided by 3. We can multiply or divide any number with the 0, then answer will be 0. So s is equal to 0. Okay, the solution s is equal to 0. Write down this 4 example in your book. After the completing h, start the I. 2q is equal to 6. The solution is, first we write the 2q is equal to 6. Now divide 2 on both sides. Divide 2 on both sides. So 2q upon 2 is equal to 6 upon 2. 2 cut. 2 3 is 6. Then solution of q is equal to 3. Now next one is solution of j. 2q minus 6 is equal to 0. 2q minus 6 is equal to 0. Now first we remove the minus 6. So first step of equation is adding both side by 6. Adding both side by 6. So 2q minus 6 plus 6. 0 plus 6. So 2q plus 6 minus 6 will be 0. And 0 plus 6 is equal to 6. Now again, divide 2 on both sides. So that 2q upon 2 is equal to 6 by 2. 2 cut. 2 3s are 6. Then q is equal to 3 is our solution. Now from question number 4, K and L, sub question K and L, write yourself. ओके, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यहाँ तक हमने जे तक करवाए, मैंने 10 एग्जाम्पल्स ऐसे करवाए, उसके हिसाब से 2 एग्जाम्पल्स आप अपने आप फिर बुक में लिख लेना. ठीक है. राइट डाउन विद द 2 क्वेश्चन एंड ऑल्सो बी नोट डाउन द होमवर्क. ओके, इन एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 सब क्वेश्चन K and L, राइट योर सेल्फ. अब तक हमने जो देखा कि हाउ टू सोल्व द इक्वेशन बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन एंड dividing by any number with the left hand side and right hand side, then we can get the solution of given equation. है ना. एक्सरसाइज 4.2 को हमने क्या देखा, जब भी कोई इक्वेशन दिया गया हो, वो इक्वेशन में या तो हम कुछ ऐड करते थे, कुछ सब्ट्रैक्ट करते थे, कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में लेते थे या कोई नंबर डिवीज़न में लेते थे. उस तरह से अलग अलग ऑपरेशन करके हम लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल को अकेला करते थे और राइट हैंड साइड में कुछ आंसर हम पाते थे. इस तरह से हम इक्वेशन सोल्व करते थे पूरे एक्सरसाइज 4.2 में. नाउ वी विल इंट्रोड्यूस द सेकंड मेथड ऑफ द सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन इज ट्रांसपोज मेथड. विच मेथड?
ट्रांसपोजिंग मेथड। इस मेथड से हम सॉल्यूशन, कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो व्हाट इज द ट्रांसपोजिंग मेथड, है ना? ट्रांसपोज, यू नो दैट वेरी वेल, यू नो दैट द वर्ड ट्रांसपोज, ट्रांसपोर्ट मालूम है? वो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? कोई एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आप मूव कराओ तो आपको क्या बोलेंगे? आई ट्रांसपोज दिस मेथड, दिस थिंग टू दिस वे, है ना? कोई भी चीज़ को आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाओगे, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट्स। तो यहाँ पे हमें यही करना है, कोई वर्ड है, कोई नंबर है, उसको हमें ट्रांसपोज करना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है। क्या करना है? शिफ्ट करना है। अब इक्वेशन तो मेरे पास एक ही है, के साथ तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऐसा इक्वेशन है कि भाई 2x + 10 = 22, है ना? तो इसी इक्वेशन में मेरे पास ये क्या है? ये लेफ्ट हैंड साइड है। ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। और ये क्या है? राइट हैंड साइड। तो जब भी मैं कोई भी टर्म्स को ट्रांसपोजिंग करूँगा, क्या करूँगा? ट्रांसपोजिंग, तो क्या होगा? देखना, उसके कुछ रूल्स है। क्या है? रूल्स इस तरह से है कि लेफ्ट हैंड साइड से कोई चीज़ राइट हैंड साइड पे जा रही हो, या तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही हो, अगर वो यहाँ पे प्लस है, कैसा है? प्लस, देन ट्रांसपोजिंग to becomes माइनस। क्या होगा? माइनस। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई डिजिट प्लस है, अगर इसको हम ट्रांसपोजिंग करके राइट हैंड साइड पे ला रहे हैं तो वो प्लस वैल्यू कैसी हो जाएगी? माइनस। कैसी हो जाएगी? माइनस। सेम ऑपरेशन, अगर कोई माइनस नंबर है, अगर कोई माइनस है, माइनस टर्म है, तो उसको अगर मैं ट्रांसपोज करके यहाँ पे ले आऊँगा तो इट बिकम अ प्लस। क्या हो जाएगी? तो आपको दो बात तो मालूम पड़ गई कि भाई अगर कोई भी टर्म्स को मैं ट्रांसपोज करूँगा, कोई भी टर्म्स को मैं ट्रांसपोज करूँगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, या तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, तब उसकी साइन चेंज होगी। क्या होगी? उसकी साइन चेंज होगी अकॉर्डिंग टू दैट साइन। अगर प्लस होगी तो क्या होगा? प्लस होगी तो माइनस होगा, माइनस होगी तो प्लस चाहे होगी। ठीक है? मतलब अगर कोई टर्म लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड में अपनी जो साइन के साथ है, अगर प्लस साइन के साथ है, तो उसको ट्रांसपोज करके मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो प्लस साइन नेगेटिव, लेकिन मतलब माइनस में कन्वर्ट होगी, और माइनस साइन होगी, इट मीन्स वो प्लस में कन्वर्ट होगी। वैसा ही रिलेशन किस में होगा? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। मैं यहाँ लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज becomes, left hand side transpose to becomes right hand side. ओके? अगर प्लस है इट बिकम माइनस टर्म, माइनस है इट बिकम प्लस टर्म, मल्टीप्लिकेशन है इट बिकम अ डिवीजन, और डिवीजन में है इट बिकम मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को मैं न्यूमिनेटर भी बोल सकता हूँ। न्यूमिनेटर में जो टर्म है वो राइट हैंड साइड में जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर वाला टर्म है अगर वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो वो चीज़ भी आपको जहन में रखनी है। ठीक है? इस तरह से होगा। अब मैं एग्जांपल ये आपको देखता हूँ। 2x + 10 = 22। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 2x
प्लस 10 इज इक्वल टू 22। अब प्लस 10 है वो प्लस है, 10 प्लस। ट्रांसपोजिंग मेथड में भी करना तो वही है, कोई भी इक्वेशन को अगर मुझे सोल्व करना है तो मुझे वेरिएबल को अकेले करना है। उससे अगली मेथड में हम क्या करते थे कि भाई एडिशन सब्सट्रैक्शन करके अकेले करते थे। इस मेथड में क्या करेंगे, इसके जितने भी नंबर है वेरिएबल के साथ, जितने भी कांस्टेंट है कोई भी रिलेशन के साथ, उसको हमें मूव करके राइट हैंड साइड में भेजना है। बस इतना ही काम करना है विद द मेथड ऑफ ट्रांसपोजिंग। सो यहाँ पे देखो, पहले तो उसी तरह ही प्लस वाला टर्म सामने जाएगा। अगर प्लस वाला टर्म, ये टर्म प्लस 10 वो लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर इसको ट्रांसपोजिंग मेथड के साथ में राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो कैसा मिलेगा मुझे, माइनस। कैसे मिलेगा, माइनस मिलेगा। सो 2x इज इक्वल टू 22 माइनस 10, क्या हो गया, माइनस 10। प्लस वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो अगर मुझे यहाँ पे कैसे मिलेगा, अब 22 माइनस 10 हुआ तो 22 माइनस 10 इट बिकम अ 12। तो वी कैन राइट दैट 2x इज इक्वल टू 10, सॉरी 12, 2x इज इक्वल टू 12। अब देखो ये जो 2 है, ये 2 वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। कैसे रिलेशन में है, मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में, ठीक है। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में मूव होगा, ट्रांसपोज होगा, तो वो कहाँ पे जाएगा, डिवीजन में, डिनोमिनेटर में, है ना। क्योंकि जब भी कोई टर्म लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में हो तो ट्रांसपोज होके वो कैसा बन जाएगा, डिवीजन में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में है। जब वो ट्रांसपोज होकर राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, 12 डिवाइड बाय 2, वी कैन गेट द सिंप्लीफाइड 6 2 ज़ा 12, देन वी कैन गेट द आंसर x इज इक्वल टू 6। दिस इज द ट्रांसपोज मेथड। यही एग्जाम्पल हम एडिशन सब्सट्रैक्शन की तरह से भी कर सकते हैं। आंसर तो मेरा 6 ही मिलेगा। देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सब लिखना है, पर ये आपको मैं इसे समझाने के लिए कि 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 22। नाउ द फर्स्ट टर्म ऑफ द इक्वेशन इज subtracting both side by 10, दोनों साइड माइनस 10 हम लेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 22 माइनस 10, 10 माइनस 10 0, 2x इज इक्वल टू 22 माइनस 10 बिकम अ 12। नाउ डिवाइडिंग both side by 2, dividing both side by 2, 2x upon 2 is equal to 12 by 2, 2 to cut x, 6 to the 12, answer will be 6। अगर मैं प्रीवियस मेथड से एग्जांपल सोल्व करूँ तो भी मेरा आंसर सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 6 आता है, और मैं ट्रांसपोजिंग मेथड से सोल्व करूँ तो भी मेरा आंसर 6 ही आता है। मतलब या तो आप वो मेथड यूज़ करो या तो ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ करो, आंसर तो आपका सेम ही रहेगा, पर ये मेथड थोड़ी उससे इजी रहेगी। बात इतनी है कि आपको याद ये रखना है कि कोई भी टर्म अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाए या तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाए। है ना, प्लस से यहाँ पे माइनस जाए, माइनस से ये प्लस हो सकता है। अगर ये माइनस यहाँ पे जाए तो प्लस होगा, ये प्लस इस साइड रहेगा तो माइनस होगा। ओके, हाँ, अच्छे से समझ लीजिए व्हाट इज़ द मेथड ऑफ द ट्रांसपोजिंग मेथड, हाउ टू सॉल्व द
इक्वेशन बाय द ट्रांसपोजिंग मेथड। जब हम कोई भी टर्म्स को ट्रांसपोज करेंगे तब वो टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। मल्टीप्लिकेशन में हो तो एडिशन में होगा और एडिशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। इतनी बात आपको कंप्लीट याद रख के ये पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको करना है। लिख लीजिए अपनी बुक में। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और दोनों तरह से करते हैं, ठीक है। जो 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 12। ये एग्जाम्पल को मैं पहले तो सिंपल मेथड से करूँगा, मल्टीप्लिकेशन एडिशन की रीत से, उसके बाद मैं ट्रांसपोज मेथड से करूँगा। तो दोनों तरह से हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 12 एंड 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे 10 ले लेते हैं, 10। ठीक है। नाउ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द गिवन इक्वेशन इज एडिंग बोथ साइड बाय 6। हम दोनों साइड 6 ऐड करेंगे। 4x माइनस 6 प्लस 6, 10 प्लस 6, 4x is equal to 16. Dividing 4 on both side, या तो dividing both side by 4. So we can get 4x upon 4 is equal to 60 upon 4. 4 cut. The solution of given equation x is equal to 4. ये हमारी सिंपल मेथड होगी जो मैं 4.2 में कई सारे एग्जाम्पल इस तरह से किए। अब वही एग्जाम्पल मैं ट्रांसपोजिंग मेथड से करूँगा। सो हियर 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 10। 2 मिनट पहले मैंने आपको समझाया था माइनस वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा तो इट बिकम अ 4x, 10 एज इट इज, माइनस 6 सामने जाएगा तो प्लस 6 होगा। कोई भी टर्म नेगेटिव सामने जाएगा तो पॉजिटिव मिलेगा। सो इट बिकम अ 4x इज इक्वल टू 10 प्लस 6, 16. नाउ 4 इज द relation with the multiplication of x. Whenever it transpose on the right hand side, it becomes in denominator. So x is equal to 16 upon 4. यहाँ से 4 पूरा सामने चला गया। 4 4 जा 16. Then x answer will be 4. So आप एडिशन सब्सट्रैक्शन से मेथड से करो या ट्रांसपोजिंग मेथड से करो, आंसर आपका सेम ही मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे अपना लेक्चर हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।